السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں مشاہد بھائی؟ جی آپ بتائیے۔ رمضان کیسے چل رہا ہے؟ بالکل سب بڑھیا، اچھا ایک دم۔ جی 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 چلتا ہے خوب۔ تو اچھا، اعتراض کس طرح کرتے ہیں آپ؟ وہاں جواب کیا ملتا ہے؟ وہاں تو جو یہ خود ہینڈل کر لیتے ہیں، زیادہ کوئی وہ نہیں کرتا ہم سے، اچھا معلوم رہتا ہے نا سب کو، تو اس وجہ سے کوئی زیادہ بھیڑتا نہیں۔ جب زیادہ بھیڑتا ہے تو اسے جواب بھی دے دیتے ہیں تو وہ پھر بولتا نہیں، اچھا، کیا خاموش ہو جاتا ہے۔ کیسے اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ تو بس کہتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ نیاز کہاں لکھا ہوا ہے، کنڈے کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اور رسول پہ علم غیب کہاں لکھا ہوا ہے، ہاں یہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میلاد کہاں پہ لکھا ہوا ہے، میلاد کیوں مناتے ہیں، 12 ربیع الاول کا جلوس کہاں نکالتے ہیں، اس کا جواب ہم دے دیتے ہیں انہیں ہاتھوں ہاتھ۔ کس طرح دیتے ہیں تو آپ؟ جیسا کنڈا ہے، کنڈا کا جواب کس طرح دیتے ہیں آپ؟ ہم یہ بول دیتے ہیں ان سے، مل کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت ابو ان کا ہے، امام جعفر کا جو نیاز ہے ان کی نسبت سے دیتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ثواب اس کو وہ ہے کہ بولتے ہیں واجب ہے یا ضروری کرنا ہے، ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ اگر آپ کا دل چاہے کرو، نہیں چاہے مت کرو۔ لیکن دیوبند جنہیں مان اچھا، بہت سارے حوالے وہ جی لوگ دیتے ہیں کنڈے کے متعلق، اور یہ کہتے ہیں کہ کنڈے جو ہے کرنا ہی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ وہی بولتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ حوالے بھی دیتے جی ہیں۔ ایک کتاب پیش کرتے ہیں، کتاب کا نام ہے فتاوی فیض الرسول، اس سے حوالہ پیش کرتے ہیں کہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کچھ نوجوان علماء میں آپس میں اتفاق کیوں نہیں، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے جی کے پر ہیں۔ اور یہاں لکھتے ہیں کہ کنڈے جو ہے، جو کنڈے کیا تھا شیعہ لوگوں نے کیا تھا، شیعوں کے موافقت سے دور رہیں، کیونکہ یہ شیعہ کا جی طریقہ ہے۔ جی تو پھر وہ جب کہہ رہے ہیں کہ بھائی شیعہ کا طریقہ تو نہیں کرنا چاہیے، نہیں، وہ اس بات کو نہیں بولتے ہم سے کہ نہیں کیا کا طریقہ ہے۔ نہیں کتاب پیش کرتے ہیں نا، یہ حوالہ جو ہے نا مشاہد بھائی، اچھا یہ حوالہ اچھا جو ہے نا، یہ اچھا دیکھیں فتویٰ فیض الرسول کا یہ حوالہ، یہ پرسنل جی میں جی دیکھیں، یہ حوالہ پیش کرتے ہیں کہ فتویٰ فیض الرسول کے اندر کہ اس میں کہ جی شیعہ کا طریقہ، جب شیعہ کا طریقہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ کسی کی مشابہت کا، جو جس کی مشابہت کرے اس کے ساتھ ہوگا، حشر ہوگا، تو شیعہ کا جی ساتھ مشابہ کرنے والا سنی تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں ہوگا۔ ہاں، تو پھر یہ حوالہ وہ لوگ دیتے ہیں۔ اصل میں کیا جی ہے، مشاہد بھائی، اس لیے جی بہت تحقیق کیا تو پتہ چلا اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دشمنی کی وجہ سے فتویٰ لگایا گیا ہے، ورنہ جی دیوبندی جی بریلوی کا مسئلہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا ہاں، میں آپ کا نام سنا، میں نے وہاں کے آپ جہاں رہتے ادھر کی تبلیغ والے آپ کی تعریف کرتے ہیں، بولے مشاہد بھائی اچھے ہیں بولے، تو جی اس نے تعریف سنا میں نے آپ کو۔ وہ مشاہد میں بات کر لیتا ہوں مشاہد بھائی سے کہ وہاں کی حالت اچھا۔ کیا ہے، اس طرح میلاد کے۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا علی اصغر بول رہا ہوں، پہچانا نہیں آپ مجھے؟ نہیں، میں نے نہیں، آپ سے کبھی بات نہیں ہوئی تو آپ کو کیا پہچانوں گا؟ نمبر کہاں سے ملا آپ کو میرا؟ نمبر کسی نے دیا اور کہا کہ یہ مشاہد بھائی جو ہیں بہت اچھے ہیں، حالانکہ وہ تبلیغی ہیں لیکن آپ کی تعریف کیا اس نے، تو اچھا میں تو بولا تھا آپ مشاہد بھائی کون ہیں؟ بولے بریلوی مسلک سے ہیں۔ اور چلو میں بھی بات کر لیتا ہوں کیا مسئلہ کچھ وہاں ہے۔ تو جس طرح آپ نے میلاد کے متعلق کہا ہے، تو یہ حوالہ بھی وہ لوگ بھیجتے ہیں اس طرح میلاد کے متعلق۔ یہ دیکھیں، یہ جاء الحق کا حوالہ ہے، اور علامہ سخاوی کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ تینوں زمانے میں، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں میلاد شریف نہیں تھا، بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ اور بعد میں ایجاد کس نے کیا ہے؟ تو یہ حوالہ دوسرا دیتے ہیں، رسائل میلاد محبوب کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ انگریزوں کی ایجاد کی ہوئی ہے، کہ یہ اچھا نور بخش توکلی نے، نور بخش توکلی کا نام لیا ہوا ہے کہ اس نے انگریزوں سے اصرار کیا، تو جو پہلے 12 وفات کہا جاتا تھا، اچھا تو اچھا نور بخش توکلی جو ہے وہ جا کر انگریز سے کہا کہ آپ 12 وفات نکال کر کے عید میلاد نام رکھیے، ٹھیک ہے؟ اچھا تو یہ بھی حوالہ دیکھیں، یہ حوالہ یہ بھی ہے، یہ میں آپ کو بھیج دوں تاکہ یہ ذہن نشین رہے۔ یہ کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے اس طرح۔ یہ دیکھ حوالہ دیکھا آپ نے، رسائل میلاد محبوب میں یہ بات لکھا ہوا ہے۔ جی جی، واٹس ایپ پہ آ چکے ہیں میرے پاس۔ اور ایک ہے عظمتوں کے پاسبان عبدالحکیم شرف قادری، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور یہ ان کی تقریر، ان کا نام حسام الحرمین میں ہے۔ اچھا حسام الحرمین میں نام کن کا ہے؟
یہ عبدالحکیم سرب قادری کی، انہوں نے یہاں لکھا ہے صفحہ نمبر 394 پہ 49 پر کہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نوربخش توکلی، جنہوں نے بہم کوشش کر کے سرکاری کاغذات میں 12 وفات کی جگہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا گیا، یہ بعد میں نام رکھا گیا، نوربخش توکلی نے رکھی ہے، اوپر سے نام لکھا ہوا ہے، پڑھتے جائیں آپ۔ حضرت علامہ مولانا محمد نوربخش توکلی قدس سرہ صحیح عقیدہ اور ٹھوس قابلیت کے مالک تھے۔ حضرت خواجہ سائی توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ کے مرید تھے۔ انہوں نے لکھا ہے انہوں نے گورنمنٹ سے یعنی انگریز گورنمنٹ سے انہوں نے کہا کہ 12 وفات پہلے چلا رہا ہے، اس کو نکال دو اور جشن عید میلاد النبی لگاؤ۔ اب جب جا الحق میں بات لکھا ہوا ہے کہ علامہ سخاوی کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ میلاد شریف تینوں زمانے میں نہیں تھا، یعنی صحابہ یعنی نبی صحابہ کے زمانے میں، اللہ کے نبی صحابہ کا زمانہ ایک زمانہ تھا، اور تابعین زمانے میں نہیں تھا، تو پھر تو میلاد تو پھر بات ختم ہو گئی، اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اگر کہے کہ بھائی میلاد صحیح نہیں ہے تو پھر مان لینا چاہیے، کنڈا کے مطالعے لکھا ہے یہ شیعہ کا طریقہ ہے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات ہے مشاہد بھائی معمولی بات پر ایک کہنا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ کافر وہ کافر۔ اب دیکھیں ایک کتاب میں نے بھیجا ہے آپ کو، نئے کچھوی مذہب سے انوکھے نور کی برسات، اس کو لکھا ہے حضرت مولانا سید محمد حسینی اشرفی مصباحی صاحب نے، سجادہ نشین آستانہ عالیہ شمسیہ اشرفیہ رائے چور، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو تاج الشریعہ کہتے ہیں نا، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ اختر رضا، ان کے بڑے بھائی نے ریحان رضا نے اختر رضا پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور اختر رضا نے اس کو کافر کہا ہے۔ یہ پوری دیکھیں، حوالہ دیکھیں، آپ کے پرسنل پہ پہنچ چکے، دیکھیں کس پہ لگایا کفر کا فتویٰ؟ ریحان رضا اختر رضا صاحب کے بڑے بھائی نے اختر رضا پر لگایا کفر کا فتویٰ، اور کہا یہ کب لگایا کہ مفتی اعظم یعنی مصطفیٰ رضا قادری صاحب کے 40ویں کے موقع پر 19 شعبان کو رضا مسجد میں مغرب کے وقت جب مسجد بھر رہی تھی مجھے کافر کہا ہے، یعنی اختر رضا کہہ رہے ہیں مجھے کافر کہا ہے، کس نے؟ ریحان رضا نے، اور وہ کہہ رہا ہے کافر مجھے کافر کہا، یعنی اختر رضا کہہ رہا ہے کہ ریحان رضا کافر نے مجھے کافر کہا، اور یہ کہا ہے تیری بیعت ختم، تیری بیعت بھی فسخ، تیرا ایمان بھی ختم، کھڑا ہو گیا، 24واں ہو گیا، تو بھی بے ایمان ہو گیا۔ یہ بڑے بھائی نے کہا ہے اختر رضا خان کو، اور اختر رضا خان چھاپا ہے۔ نیچے لکھا ہے حدیث دیا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے جب کوئی مسلمان کسی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی کافر ہوتا ہے۔ تو اب کہنے والے جو ہیں مخالف جو ہیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے کے، وہ کہہ رہے ہیں اب یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، دونوں میں اگر کوئی کافر کہے، میں آپ کو کافر کہوں آپ مجھے کافر کہیں، تو دونوں میں سے کوئی تو کافر ہوگا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تو بول رہے ہیں کہ تاج الشریعہ کا کافر ہے یا پھر ریحان رضا۔ تو جب مسئلہ کے اعلیٰ حضرت میں خود کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے، پھر دیوبندی کے جو اوپر جو فتویٰ لگایا وہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت نے لگایا ہے، تو دیوبندی کے نزدیک مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے کا فتویٰ تو قبول نہیں ہے نا، معتبر نہیں ہے نا، نہیں مانتے وہ لوگ نا، لیکن مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے جو اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں تو ان کے یہاں تو کفر ثابت ہوتا ہے، پکی بات، لیکن دیوبندی پر جو کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے وہ معتبر نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اگر کسی کو اوپر اگر کسی سے کہیں گے کہ آپ کے اوپر یہ فتویٰ لگایا جا رہا ہے تو وہ کیسے مان لے گا کوئی سبھی فرقہ؟ اور پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نیاز کوئی اگر کوئی کوڑے کی نیاز کو منع کرے کہ نہیں کرنا چاہیے، اگر کسی چیز کے لیے ہم کسی کو رسالے ثواب پہنچانے کے لیے اگر کچھ کر رہے ہیں تو کوئی یہ تو ہے نہیں کہ آپ بالکل بند کر دیجیے، نہیں ہے۔ اور میلاد کا مطلب کیا ہے جو آپ نے مجھ سے کہا کہ میلاد کا مان لیجیے؟ کیوں مان لیجیے بھائی میلاد کو؟ میلاد کا نام رسول اللہ کی پیدائش بیان کرنا ہے، ہم رسول اللہ کی پیدائش بیان نہیں کریں گے تو اور کس کی بیان کریں گے؟ بالکل صحیح ہے، اشرف علی تھانوی کی پیدائش بیان کریں گے، راشد گنگوئی کی پیدائش بیان کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے، لیکن دیکھیں تو آپ نے یہ پھر کیسے کہا کہ مان لیجیے؟ کیوں مان لیجیے بھائی؟ اچھا میں بتا رہا ہوں، سنیں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ ارے مجھے مت بتاؤ، مجھے سب معلوم ہے، مجھے اتنا نہیں مجھے بتانے کی مجھے بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو میں نے آپ کی تو تھوڑی بات سنی، اور پہلی بات یہ میں نے آپ کے منہ سے سننا ہوں، میں آپ ہی بالکل تحقیق کر کے دیکھتا ہوں کہ کہاں کسی نے ریحان رضا پہ فتویٰ لگایا، حضور تاج الشریعہ نے لگایا، میں بھی بالکل آپ کو اس کا جواب، آپ مجھے حوالہ مت دو، میں آپ کے خانقاہ کا حوالہ لینا پسند ہی نہیں کرتا۔ نہیں پہلی بات تو یہ نہیں اب تو ناراض ہو گئے۔ پہلی بات میں تبلیغی جماعت والا ہوں ہی نہیں، میں اہل سنت والجماعت ہوں، ٹھیک ہے جی، آپ جو بھی ہوں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں
कि किताब मसला के आला हज़रत वाले की है, मैं भेज दिया हूँ, उसकी तहकीक कर लेना आप, किताब बता के किसी को। आपकी किताब की मुझे जरूरत है ही नहीं ना, नहीं, मैं मेरी तो किताब की अपने नहीं, मतलब से मेरे मुशाहिद भाई हमारे जो है, सुनो तो एक मिनट मेरी बात, जी हम जब आपसे इतनी बात कर रहे हैं, आपको हमारा किसी ने इतनी जी जी हमारे पास इतने 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 बड़े बड़े हुजरे हैं कि शायद नौगांव की सरजमीन पर जामा मस्जिद पे ना हो, जो सबसे बड़ी मस्जिद है यहाँ पे, नौगांव के हैं जो हमने अपने हुजरे में किताबें रख आप, रखी हैं। नौगांव के हैं? जी मैं नौगांव अच्छा, से तो रहता मुशाहिद हूँ। भाई मैंने जो हवाला भेजा देवबंदी किताब से नहीं भेजा है, ये मसला के आप आला हज़रत वाली कैसे, किताब अरे है। भाई, अरे भाई, ये आला हजरत ने जो फतवा लगाया था हाँ कि ये जो क्या अशरफ अली थानवी काफिर हो गया, तो कुछ लोगों ने अशरफ अली थानवी के जो मुरीद थे उन्होंने अशरफ अली थानवी से पूछा, उन्होंने खुद अपनी किताब में ये लिखा हुआ है कि अगर आला हजरत हम ये ना लिखते कि अशरफ अली थानवी काफिर है तो वो खुद काफिर हो जाते। अच्छा अब ये आम रिवायत है, सैयद मुफ्ती मुसलमान अजहरी हर बयान में इस तकरीर को करते हैं, जी। अगर आपको कहीं देखना हो तो वो बिल्कुल तो हर चीज का हवाला पेश कर रहे हैं, बिल्कुल आप चेक आपने करिए सही उठा कहा के। है, आपने सही कहा है मुशाहिद भाई, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, ये देवबंद काबिर किताब मौजूद है, लेकिन अल मलफूज है, ये मलफूजात हकीमुल उम्मत में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक और किताब है अल मुहन्नद और अल मुफन्नद, जो देवबंद की अकायद की किताब है, उसमें जो लिखा है, अब मसला क्या, जो फाजिल बरेलवी साहब है ना, जिसे मुजद्दिद कहते हैं, उसे का कुफ्र का फतवा लगाया है, और उसी में अशरफ अली थानवी साहब की तकरीर मौजूद है। तो जिस किताब से साबित किया जा रहा है कि अशरफ अली थानवी ने कहा है कि अगर अहमद रज़ा मुझे काफिर नहीं कहते तो खुद काफिर हो जाते, वो किताब है जिस किताब को बरेलवी कहते हैं गैर मोतबर है, यानी मलफूजात हकीमुल उम्मत। तो गैर मोतबर ये तो ऐसी चीज है कि आपके क्या बोलते हैं, हर मौलाना ये जो भी कहते हैं जी कि सबने इस पे अपने मोहर लगा के दी है कि किताब सही है, आप कैसे कह रहे हैं कि किताब मोतबर नहीं है? कौन सी किताब? मोतबर है कौन सा बरेलवी, जो तो ये जिसपे अशरफ अली थानवी ने खुद कहा कि अगर आला हजरत हम मुझे काफिर न कह रहे तो वो खुद हो जाते। जी जी तो ये बताइए कि कौन सी किताब ने, किस मुफ्ती ने, मौलाना ने, आलिम ने, कामिल ने, किसने मना किया, किसने आला इनकार किया कि हमारी नहीं है? जी 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 मैं बता रहा बताइए हूँ, आप। जी जी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, फिक्र न करें। जो अगर वो कोई बताएगा तो आप ही के मसलक वाला बता सकता है, हमारे मसलक नहीं, हमारा तो कुछ है नहीं, हमने जो कह दिया। आप तो यार गुस्सा हो रहे हैं, मैं आपसे कितने खराब से बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने आपसे कोई गलत बात तो की नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूँ। ये देखें आपके पर्सनल हवाला भेजा, देखें किसके है बताएं आपको, आपके आला, जो जिसको आला हजरत कहते हैं ना, आला हजरत, उनके बेटे मुस्तफ़ा रज़ा कादिर साहब की ये है, देखें मैंने भेजा है। अब कलीमा हक़, उन्होंने सफ़ा नंबर 42 पे लिखा है कि मलफूजात उसके लिखे हुए नहीं होते, जिनके होते हैं, जिनके मतलब लिखे वो मलफूजात उनके नहीं होते। मलफूजात की तरतीब का एक कायदा होता है कि किसी बुज़ुर्ग की खिदमत में उसके मुस्तरदिसिन और मुतवल्लिसिन हाजिर हुआ करते हैं, उसके इरशादात सुनकर अपने अपने मकाम पर पहुँच कर अपनी याददाश्त के मुताबिक कलमबंद कर लेते हैं। मलफूजात में अगर कोई गलती वाक़ई हो जाए तो कलमबंद करने वाले की याददाश्त की गलती की जाएगी, उस गलती की बिना पर खुद साहिब मलफूज पर इतराज़ करना बेईमानी और खबासत नफसानी है। ये पहला हवाला। दूसरा हवाला दे रहा हूँ मैं आपको, उसमें लिखा हुआ है कि मलफूजात जो है मोतबर नहीं है और उस पर एतराज़ करने वाला जो है वो जाहिल है। ये बात है। ये बहुत सारी जो मलफूजात से जो हवाला पेश करते हैं कि थानवी ने कहा है अगर अहमद रज़ा काफिर नहीं कहता वो खुद काफिर हो जाता, तो मलफूजात खुद तो मसला के आला तबारक के अंदर मोतबर नहीं है। अब उसके मुकाबिल में अल मुहन्नद और अल मुफन्नद जो है मुशाहिद भाई, वो देवबंदी की यहाँ अकीदे की किताब है। उस किताब के अंदर ये देखें भेजा है आपके अंदर कि हज़रत शहीद मजलूम पर 70 वजूह से कुफ्र साबित फरमा कर फ़ुक़हा किराम का इजमाई क़तई फैसला करार देकर खुद एहतियात की थी अहमद रज़ा साहब ने, जिसकी बिना पर खुद फ़ुक़हा किराम और असहाब फतवा इज़ाम के नज़दीक खुद मा जुमला मुतअद्दिदीन काफिर हो चुके थे, खुद मा जुमला मुतअद्दिदीन के काफिर हो चुके थे, यानी उनके मानने वाले के साथ खुद खान साहब काफिर हो चुके थे। तो जब यहाँ पे कुफ्र का फतवा दे दिया गया उस किताब जो मोतबर है तो इसी को माना जाएगा। अब वो किताब जिसके अंदर जो मोतबर नहीं है खुद मसला क्या है हज़रत में, वो बात मानी नहीं जाएगी कि इसकी वजह से जो है मुसलमान माना गया है, ये मोतबर होगा। इसको आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं बहुत समझा हुआ हूँ, मुझे आप समझाने की कोशिश ना करें, मैं बहुत समझा हुआ हूँ, मैं इसी मामले में रहता हूँ। हज़रत आप मुझे सुनो एक मिनट मेरी बात, आप मुझे बिल्कुल भी समझाने की कोशिश ना करें, ना तो मैं बहका हूँ और ना बहकूंगा। हमारी जो पुश्तों से आ रहा है वो यही आ रहा है, पहले हम सुन्नी थे, सुन्नियों में कुछ लोगों ने उस सुन्नियत में ही पैदा होने के बाद रसूलुल्लाह की विलायत पर डाका डाला, फिर उनका गैब पर डाला, फिर उनके बाद
दुनिया भर की चीजों पे फिर गैब नहीं पता, दीवार के पीछे का नहीं पता, ये नबी नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह से मांगो, ये सुन्नियों में ही पैदा हुए। तो अल्लाह ने ये मुर्दे के अंदर जो बरेली के अंदर पैदा किया है, हम उसकी निस्बत से चलना है। हमें हम जो रसूल अल्लाह के हाल से चले आ रहे हैं, जो उनके बताए हुए फिरके पे है, हम सिर्फ उसी पे हैं। अब ये जो तुम्हारा देवबंदी फिरका है, अरे हदीस है, ये दुनिया भर के जो तुम्हारे बने हुए हैं, ये ज्यादा पुराने नहीं है, सब नए हैं। और ये जो शिया जो है, ये उसके बाद बने हैं, मौला अली के बाद से। हजरत उमर के जमाने में कोई फिरका नहीं था। मुशाहिद भाई, ना हजरत उमर नहीं, हमें जी मैं सब समझा हूँ। मलफूजात आला में लिखा हुआ है कि वहाँ भी जो है दौरे फारूकी में मौजूद थे। ये फारूक आपके ये मुजद्दिद साहब कह रहे हैं आपके, वो आप अच्छा हाँ। वो आपने ये नहीं सुना कि जिस टाइम रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए तो कुछ मुनाफिक जो बगावत करते थे, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि वो पीछे नमाज पढ़ना है रसूलुल्लाह के, और बाहर निकलने के बाद वो उनके पीछे उनकी बुराइयां कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने नमाज जुमे के अंदर मिंबर शरीफ पे खड़े होकर कहा कि जितने भी मुनाफिक हैं मस्जिद नबी से फौरन बाहर हो जाओ। तो उसका सुनो, एक मिनट पहले मेरी बात, उसका हवाला आपने नहीं पढ़ा, तो आपने उसका हवाला नहीं पढ़ा आपने ना, उसका किसी देवबंदी को आप बताओगे? सुनो एक मिनट पहले मेरी बात, नहीं आप किसी को बताओगे, अन्ना कोई आपसे बताएगा इस बात? नहीं बताएं, हदीस मानेंगे भाई। उसके बाद सुनो पहले मेरी बात, मैं पहले जब मैं आपको प्यार से सुनता हूँ तो आप भी मेरी आराम के साथ हाँ सुन ही रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद रसूल अल्लाह ने हर मुनाफिक को कहा कि जितने भी मुनाफिक हैं फौरन से फौरन मस्जिद नबी से बाहर हो जाओ। तो कोई मुनाफिक मस्जिद नबी से बाहर नहीं हुआ। अच्छा, रसूल अल्लाह ने 3 बार कहा, तीन बार कहने के बाद चौथी बार ये कहा कि खुद उठते हो या नाम ले लेके उठाऊं? तो जब वो नहीं उठे तो नाम ले लेके उठाया। तो कितने थे वो? 500 कुछ वो निकले उसके अंदर मुनाफिक। उन्होंने अपनी मस्जिद दरार बनाई अलग। ये हदीस साबित कर सकते हैं आप क्या अल्लाह उठा दिया मस्जिद से? बिल्कुल बिल्कुल भेजेंगे, आप टेंशन न लें। मस्जिद ज़रार तो मैं इस टाइम सुनो एक मिनट थोड़ा सबर करो, मैं इस टाइम दुकान पे हूँ, ठीक है बैठा हुआ हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सब भेज दूंगा। आपका आपने मुझे सारे व्हाट्सएप भेज दिया है, मैं बिल्कुल गुजरात के जरिए आपको भेजूंगा। एक बंदा गुजरात में है मेरा, मैं सब भेजूंगा, बिल्कुल टेंशन न लें। एक बात सुनो ना मुशाहिद भाई, फिर उसके बाद रसूल अल्लाह को किसी ने मस्जिद दरार बनाई। मस्जिद दरार के बाद उन्होंने नमाज जैसे पढ़नी चाहिए तो फौरन रसूल अल्लाह को सहाबाओं ने बताया कि या रसूल अल्लाह, जो तुमने मुनाफिकों को मस्जिद से बाहर निकाला था, वो उन्होंने मस्जिद पे दरार बनाई, उन्होंने मस्जिद का नाम मस्जिद दरार रखा है। तो रसूल अल्लाह ने सहाबाओं को हुक्म दिया कि जाके फौरन उस मस्जिद को शहीद कर दो। तो वो मस्जिद ढा दी गई। आपको ये हदीस, ये हवाला, ये रिवायत, ये किताब कहीं नहीं मिली होगी, समझ गए? ठीक है। तो तुम कैसे कह रहे हैं कि हजरत फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में तो कोई फिरका ही नहीं था? अच्छा जी, नहीं था। दिखाओ मुझे कौन सा वो तुमने दिखा दिया कहते। अभी ये तो तुम सुनो एक मिनट, पाकिस्तान का जो ये है तुम्हारा मौलाना तारिक मसूद, इसे तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे आप। जी आप सुनते भी होंगे तकरीरें। इन्होंने अभी 10 दिन पहले ये कहा कि देवबंदी कोई फिरका नहीं है, 150 साल पुराना है। देवबंद का मदरसा कितने साल पुराना बता? तो जो मुनाफिकीन को जो निकाला था अल्लाह के वसल्लम ने, वो क्या वहाँ भी देवबंदी थे? मुनाफिक को कहा है, सिर्फ मैंने ना देवबंदियों का नाम दिया ना कुछ चीज। तो रसूल अल्लाह ने ये कॉल कर दिया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होने हैं, और 73 में से 72 जहन्नमी है, 1 जन्नती है। अब वो कुछ जो सोच ले अपने आपको। ठीक है, तो मुशाहिद भाई ये देखें, आपने कहा कि ये जो आप बरेलवी हैं, जो वो अल्लाह के नबी के ज़माने से थे ना, देवबंदी उस वक़्त से नहीं था। तो ये तो सब रसूलुल्लाह के ज़माने से। हाँ बरेलवी। तो ये जो मुनाजरा जंग मैंने भेजा है अशरफ सियार, वो कह रहे हैं कि आप लोग जिसे बरेलवियत या रज़ाख़ानियत कहते हैं, वो मौलाना अहमद रज़ा साहब की वजह से कायम हुई है। तो अहमद रज़ा साहब क्या अल्लाह के नबी के ज़माने से थे? कौन? ये मुनाजरा जंग में लिख रहे हैं कि जिसे आप बरेलवियत रज़ाख़ानियत कहते हैं, वो अहमद रज़ा साहब की वजह से कायम है। तो आप बताएं, अहमद रज़ा साहब 100-150 साल के हैं, आप तो कह रहे हैं कि देवबंदी उस वक़्त नहीं थे, अभी पैदा हुए, और आज तो बरेलवी भी अभी पैदा हुए। 150 रसूल अल्लाह को दुनिया में इस्लाम फैले हुए 1400 साल हो चुके हैं। और उसके बाद जितने भी उम्मत आए, ना तो तुम थे रसूल अल्लाह के जमाने में, और ना मैं था रसूल अल्लाह के जमाने में, और ना आला हजरत थे रसूल अल्लाह के जमाने में, ना अशरफ अली थानवी था रसूल अल्लाह के जमाने में। तो कौन थे वो? जो उनकी किताबें आ रही है, कुरान शरीफ से हवाले लिए हैं, कुरान शरीफ से मुनादे किए हैं, तो उनके ऊपर अल्लाह जितना अपना इल्म देते,
मौला अली ने कहा ना कि मैं इल्म का समंदर हूँ। हाँ बिल्कुल, तो मौला अली खुद कहा, उन्होंने खुद कहा, फिर इसका अबू बकर सिद्दीक, इसका जिक्र अबू बकर सिद्दीक ने क्यों ना कहा कि मैं इल्म का समंदर हूँ? हजरत उमर ने क्यों ना कहा कि मैं इल्म का समंदर हूँ? अल्लाह जिसे देते। मुशाहिद भाई, हजरत अली का उन्होंने खुद कहा कि मैं इल्म का समंदर से कहा, खुद कहा उन्होंने जी, ये खुद अपनी तारीफ की अपनी जबान से। हाँ तो फिर इस तरह बातें न करें, इल्ज़ाम अली रज़ी अल्लाह पे इल्ज़ाम ना लगाएं। मुशाहिद भाई आप आलिम नहीं हैं, इस तरह बातें ना करें। दूसरी बात, आपने एक बात कही है ये फातिहा इसाले सवाब के लिए। देखिए इसाले सवाब देवबंदी मानते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको हवाला दिया है फतवा रज़विया का कि फातिहा करते वक्त खाना सामने रखना बेकार बात है, तो ये आप लोग ऐसा काम करते हैं जो शरीयत में नहीं है, बेकार बात काम करते हैं। ये मैंने हवाला भेजा आपको ऊपर, ये जाल हक का, उसमें लिखा है कि ईद मिलाद जो है अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं था, तीनों ज़माने में नहीं था। तो आप लोग तो कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, सुन्नी उसे कहते हैं जो वो काम करे जो अल्लाह के नबी तीनों ज़माने में होता था। तो एक मिनट सुनिए आप जी, आपने अपने ये कहा कि ईद मिलाद जो है, ईद मिलाद वो रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं था, ये कहा ना आपने? जाल हक वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कहा। अरे नहीं, आप कहे तो जाल हक वाले कह रहे हैं, कह तो आप भी रहे ना। हाँ तो मैं उसी को पढ़ रहा हूँ ना भाई। नहीं पहले मुझे नहीं, मैं आगे नहीं पूछ सकता। तो आप ये बताइए, आप ही कह रहे हैं ना मुझसे हाँ रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं था मिलाद, तो आप भी मिलाद मत करो। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलाद नबी। नहीं मुझसे ये बताओ, यही कहना चाह रहे हैं आप? ईद मिलाद, जश्न ईद मिलाद नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। और क्या बोल रहे हो? मिलाद, लफ्ज़ मिलाद से हमें कोई ये नहीं है, बैर नहीं है। मिलाद कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम पैदाइश, जो नबी अलैहिस्सलाम पैदाइश को ना माना वो मुसलमान नहीं, काफिर है। जो नबी अलैहिस्सलाम को पैदाइश का नाम मिलाद है, तो फिर आप मिलाद का जिक्र क्यों ला रहे हैं भाई? हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, हम तो रोज अपने घर में मिलाद करते हैं। नहीं, आपको क्या परेशानी है? नहीं परेशानी नहीं भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, परेशानी है आपकी? हम तो रोज अपने घर में, घर में कभी तो मौला हुसैन की नियाज करेंगे, कभी रसूलुल्लाह की नियाज करेंगे, कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक की करेंगे, कभी हजरत गौसे आजम की करेंगे, कभी मौला अली की करेंगे। जिनकी पैदाइश आती रहेगी हम सबकी करते रहेंगे। आपको क्या परेशानी है भाई नियाज से? अच्छा, जिसकी पैदाइश जब आएगी फातिहा से कोई दिक्कत है मुशाहिद भाई? ये बताइए। नहीं आप मुझे ये बताइए, आपको कोई फातिहा से दिक्कत है? जवाब दूं तो आप कह रहे हैं कि जिसकी पैदाइश जब आएगी हम उसी वक्त करेंगे। जिसकी जब पैदाइश जब हो, पैदाइश की दीनी करना चाहिए। जी नहीं, ऐसा है कि इस्लाम के अंदर ऐसा चीजें हैं कि किसी के घर कोई जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को नियाज, पैदाइश है, वफात है, किसी भी चीज को दे दो। खुशी है, जब तुम्हारे घर में खुशी हो, बयान हो, जब कर दो। बच्चे की खुशी होने पर तो आप केक कटवा रहे हैं, पूरे इलाके में लड्डू बंटवा रहे हैं। जायज नहीं है, जायज नहीं है, हराम है। क्यों नहीं है? तो लगवाओ मुफ्ती अब्दुल रहमान पे फतवा। कौन अब्दुल रहमान? यही अब्दुल रहमान है तुम्हारा, जामा मस्जिद का नई बस्ती का लगवाओ। जो किसी के पैदाइश पे केक काटे, चाहे कोई भी हो, जायज काम नहीं है, चाहे वो देवबंदी हो कोई भी हो। नहीं, मौलाना तैयब पर लगवाओ फतवा। ये है तुम्हारा जामा मस्जिद का, मोहम्मदी मस्जिद में इमाम पढ़ा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आधी टांग के पीछे नमाज हो जाएगी, लगवाओ इसको फतवा, जिसने नंबर दिया हुआ मेरा लगवाओ। मैं कुछ बोलूं मुशाहिद भाई? हाँ बोलो। अच्छा बताएं, क्या देवबंद का किसी भी आलिम अगर कोई जिना कर ले, शराब पी ले, चोरी कर ले, तो क्या उसका अमल पर पूरा देवबंद के अकाबिर जिम्मेदार हैं कि वो खुद उसके जिम्मेदार है? अरे तो भाई वो फिर देवबंद का, तो फिर सारे बरेलवी के जिम्मेदार हैं? नहीं। अगर कोई अगर आलिम कोई अगर कुछ कहे जाए पैसे के जरिए, अब आप देखिए क्या बोलते हैं, इलेक्शन का दौर आ रहा है इलेक्शन का दौर। अब सामने आदमी बैठा हुआ है, वो उसके थोड़े घर में पैसे पुछवाए और अपना कहना अलग से सब कुछ गहना कहना पड़ दिया, शुरू कर दिया। माइक पर बैठने के बाद बदनाम कौन हो रहा? मुसलमान। चलो मुशाहिद भाई देखें, एक बात देखें जी। एक तो आपने किसी अब्दुल रहमान मौलवी का नाम लिया, वो केक काटा, ये उसका इनफिरादी अमल है। और आप जो जश्न ईद मिलादुन नबी करते हैं, जो तीनों ज़माने में नहीं था, ये इज्तिमाई अमल है, पूरी बिरलबित करती है इसको। फातिहा खाना सामने रखकर पूरी बिरलबित करती है, तो पूरी बिरलबित जिम्मेदार है ना। जो अगर कोई देवबंदी पूरी सुनो मेरी एक बात सुने, मुझे बोलो, अगर पूरी देवबंदियत अगर किसी अपने बच्चे के केक काटने के सामने पैदाइश में केक काटते हो, उसको दीन समझते हो, तो वो आप उस पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि भाई दीन समझते हो। आप लोग दीन समझते हैं, खाना सामने रखकर फातिहा पढ़ना, जब तक खाना सामने नहीं आवे सुन्नी फातिहा नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल, हम रसूल अल्लाह का मिलाद दीन समझ के मनाते हैं। चलो ठीक है जी, हम रसूल अल्लाह का जो मिलाद बनाते हैं, जब अल्लाह ने मिलाद बनाया है
तो हम भी दीन समझ के ही मिलाद बनाएंगे, चाहे हमारी गर्दन क्यों ना कट जाए। चलो ठीक है, आप समझ दिन गए? अच्छा बताएं मुशाहिद भाई, दिन अपनी बनाई हुई चीज़ों को कहते हैं कि अल्लाह उसके रसूल जो बनाए उसी को कहते हैं? अल्लाह से और अल्लाह के रसूल ने जो दीन बनाया है, हाँ। तो उसे हम दीन कहते हैं। चलो माशाअल्लाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने समझदारी की बात कही है। सुनो, उसे जो चलाने वाले हैं, हाँ। हम उलमाओं को दीन कहते हैं। चलो ठीक है माशाअल्लाह। तो आपने कहा अल्लाह उसके रसूल ने जो बनाया वही दिन है। यहाँ तो जब आपके अहमद यार खान नईमी साहब कह रहे हैं तीनों जमाने में जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं था, तो वो दिन तो आप बना रहे हैं ना, उनके बनाए वो नहीं था ना, उनका बनाया हुआ। अरे वो नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उनके जमाने। ये देखो कि रसूल जिस टाइम रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई तो अल्लाह ने मिलाद बनाया या नहीं बनाया? ये देखिए अल्लाह बिल्कुल अभी भेजूंगा, मुझे हवाला भेजने की जरूरत नहीं, खाली यूट्यूब पर अल्लाह ने क्या बनाया? अल्लाह ने क्या बनाया? अल्लाह ने खुद मिलाद बनाया रसूलुल्लाह की पैदाइश का। किस तरह बनाया? जिस हाँ? टाइम रसूलुल्लाह की पैदाइश थी, हाँ? तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फौरन 3 झंडे दिए। तीनों झंडे, एक कहा कि एक जाके हजरत आमना के घर में लगा के आओ आंगन में, और दूसरा बैतुल मुकद्दस में, और तीसरा मगरिब में। तो ये तीनों झंडे लगवाए के बता दो कि सारे फरिश्ते, सारी दुनिया उस टाइम रसूलुल्लाह का मिलाद मना रही थी। आप कह रहे हैं कि अर्शे बरी पे मिलाद हो रहा है, अल्लाह खुद मिलाद मना रहा है कुरान शरीफ के अंदर। आप पहला कलमा पढ़ लीजिए। ये देखें ये हवाला देखें, आपके पर्सनल मैंने भेजा है, मिरातुल मनाजी है, अहमद यार खान नईमी साहब की है। झंडे के मुतालिक कह रहे हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं, न कि जिब्राइल की उम्मती हैं। क्या लिखा है? मालूम हुआ कि मुसलमानों पर हुजूर की इताअत वाजिब है, न कि जिब्राइल की, कि जहाँ जिब्राइल ने हाजिरी से जो काम किया हो वो तुम करो। आप तो कह रहे हैं हम नबी के आशिक हैं, उसकी उम्मती हैं, और आप जिब्राइल का अमल पेश कर रहे हैं। जिब्राइल ने शादी नहीं किया, शादी नहीं करते हैं। अल्लाह ने हर काम जो है, हर काम सुनो, जो बड़े काम है वो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए, मतलब जैसे एक बार आपने, तुम तो ये कुर्बानी तो करते होंगे, इतना तो पता होगा, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके जा रहे थे कुर्बानी पेश करने के लिए, जब कहा था कि उन्होंने, अल्लाह ने फौरन हुक्म दिया कि जिब्राइल जल्दी जाओ कि वहाँ पे दुम्बा पेश करो। ये तो सुना होगा। अच्छी बात है। तो फिर अल्लाह से हम जिब्राइल अलैहिस्सलाम का अमल क्यों आप पेश कर रहे हैं, क्यों कुर्बानी कर रहा है भाई? चलो ठीक है, नहीं गलत क्यों गलत है भाई? मैं बता रहा हूँ। नहीं, मुझे मत देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब मालूम है। आपको जिसने बताया आप उसे बताइए। मुशाहिद भाई ये कुर्बानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की है इसलिए नहीं, कुर्बानी अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की इसलिए तुम करो। ऐसा नहीं कि जिब्राइल ने करवाया तो तुम करो, ऐसा नहीं। दूसरी बात आपने कहा, आपने एक बात कही, अल्लाह, आपने एक बात सुनिए, आपने कहा ईद मिलाद जो अल्लाह की सुन्नत है, आपने कहा है ना, तो अल्लाह की अगर सुन्नत है तो तीनों जमाना में जो नहीं किया, ये आपके अहमद यार खान नईमी सब लिख रहे हैं कि वो लोग अल्लाह के नबी अल्लाह की सुन्नत छोड़ दिए। सबने बनाया है, किसी ने फिर ये झूठ लिखा है इन्होंने मुशाहिद भाई, झूठ लिखा है अहमद यार खान नईमी साहब ने। हाँ, सब तुम्हारे जो तुम पढ़ रहे हो सब झूठ है, जो है सब लिखा हुआ है। जो अहले बरेलवी करता है वो बिल्कुल डंके की चोट पकड़ता है। अच्छा, मतलब जो शरीयत में है वो झूठ है, जो आपके बरेलवी करते हैं वो सही है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बिल्कुल एकदम एक नंबर, एकदम सही करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, आपने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी, आपने बड़ी गुस्ताखी कर दी मुशाहिद भाई, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शरीयत तुम्हारी खुद की लिखी हुई है, किताबें तुम्हारे खुद घर की छपी हुई है, अमेरिका से तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तुम अमेरिका का एजेंट हो। कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है मुशाहिद भाई अमेरिका से पैसा आता है? हम तो तुम्हारे पास ही आ रहा है, तो चलो तुम सबसे पहले आके देखो अपने। अच्छा, आपने मुशाहिद भाई आपने कंज़ुल ईमान पढ़ी है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन पढ़िए। मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ। मैं सुनो, मैं आलिम नहीं, ठीक है आपने कह दी, अच्छी बात है। आपने फिर मुझसे कैसे कहा? कुरान पाक की आयत सुने, ये करना हो, सुनो, अगर आपको मुनाजरा पेश करना हो आप तारीख दीजिए, मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। आप कर ले कोई बात नहीं। मैं एक बात आप बता रहा हूँ आपको, डेट दीजिए आप अपनी। मुशाहिद भाई एक बात सुनो, आप गुस्सा हो रहे हैं, नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो इतना बड़ा कुरान पाक या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्म। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। अरे भाई मैं जाहिल हूँ, मुझे आप हवाले पेश करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं अपने आलिम को आपके सामने बिठाऊंगा, मुझे आप अपने डेट दीजिए, कंफर्म कीजिए, आप आइए यहाँ पे। ठीक है। आपने मुझे एक बात अभी कही है
کہ اللہ ने जैसे मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे भाई? मैं समझ रहा हूँ। मुझे क्यों आप इतना बुलवा रहे हैं भाई? ठीक है, कोई ये बात बताओ, नहीं, मुझे ठीक है, काम ठीक है, करना है, मैं अभी कुरान ये शरीफ कर को पढ़ना ठीक है है, भाई, आप मुझे इतना क्यों बुलवा रहे हैं? ठीक है। आपने एक बात वाजे कर दिया है, ये मैं खुलासा करता हूँ। आपने कहा जो शरीयत है आप वो नहीं मानेंगे, जो आपके बरेलवी ने मनाता है वही आपके यहाँ दीन है। ये तो वो नहीं मानेंगे हम, जो नहीं, आपके मत माने, भाई मत माने, आपके यहाँ कब्वा मत हलाल माने। है, हाँ, आपके यहाँ सुनो, आपके यहाँ कब्वा हलाल है, वो हमारे यहाँ वो शरीयत को हम नहीं मानेंगे। कहाँ पे लिखा है? अल्लाह को इतना गैर नहीं है। कहाँ पे लिखा है देखो तारीख, मुशाहिद भाई? तारिक मसूद को देखो, उन्होंने कहा है। क्या कहा है? मुझे क्या पता कहाँ लिख रहा है? तारिक मसूद ने कहा है कि कब्वा हलाल है, अगर आप सात दिन पिंजरे में बंद करके खा लो तो कब्वा हलाल है। तो वो तो वीडियो कटिंग करके मुशाहिद भाई, वो वीडियो कटिंग कर बनाए, मुकम्मल बयान सुनिए उनकी। कोई बना देगा, मैं तो पूरी वीडियो सुनता हूँ। अच्छा, आप अपनी किताब नहीं मान रहे हैं, जहाँ जैसे ईद मिलाद में भी क्यों से मालूम नहीं था, लेकिन मौलाना मसूद साहब की वो कटिंग वाली वीडियो मान रहे हैं। देखें, एक कौवे के मुतालिक सुने, एक कौवा। सुनो पहले मेरी बात, मैं अपनी किताब पूरी मानूंगा, हर किताब मानूंगा, मगर मैं जब मानूंगा जब मैं खुद पढ़ूंगा और खुद अपनी आंखों से देखूंगा। अगर पढ़े ना, मैंने भेज दिया, पढ़े ना। मैं तुम्हारी कहीं भी चीज नहीं मानूंगा। ये देखें फतवा रस्बिया, देखें कौवा हलाल लिखा है इसके अंदर, बिल इत्तेफाक जायज है। किताब में हाँ, फतवा रस्बिया जिल्द 20। अच्छा, देखें पढ़े ये देखें, हवा देखें, बिल इत्तेफाक काला कौवा सिया रंग का होता है, बिल इत्तेफाक जायज है। जी जी, मुझे आपका नाम तो किसी और किताब का ले रहा है और पढ़ नहीं रहे हो। फतवा रज़विया देखें, फतवा देखें। तुम सारे हवाले यहाँ पे लेके आना, जब जिस दिन हम मुनासिब, आप मुझे तारीख दीजिए, टाइम दीजिए। दूसरा हवाला देखें, फिर बताना। दूसरा हवाला देखें, मकड़ी खाना जायज है आपके यहाँ? मकड़ी, ये देखें, ये मकड़ी खाना जायज है। ये देखें कहाँ, ये देखें मिक़यासुल हनफियत ने लिखा है कि मकड़ी भी जायज है। ठीक है, मकड़ी जायज, हाँ, लिखा है कि मछली और मकड़ी ये भी हलाल है, लिखा है। और हवाला दूं, घर में आपके वो जाला बुनेगी नहीं, मकड़ी खा जाएंगे ना, तो दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात ये है, ये किताब तवज़ीउल बयान के अंदर ये अल्लामा गुलाम सईदी लिखते हैं कि कुरान पाक में गधा, कुरान पाक में दरिंदों और गधों का गोश्त खाने से अब क्या चीज़ माने है, क्या रुकावट है? क्योंकि किताबुल्लाह में तो उनकी हुर्मत का कोई जिक्र नहीं, यानी कुरान पाक में गधे का गोश्त का, बिल्ली कुत्ते का गोश्त खाना मना नहीं है, तो अब क्या रुकावट है? तो आप वो भी खाएं। हवाला देखें तवज़ीउल बयान के अंदर। हमारे अंदर हमारे पास कोई असला कैसा हवाला नहीं आया है जैसा आप हमें सुना रहे हैं, समझ गए? भेज दिया। जो हवाले हम आपको पेश कर रहे हैं उस हवाले को आप सुनिए सिर्फ, समझ गए? और आप मुझे तारीख फिक्स करिए कि आप मुनाजरे के लिए बैठिए, किस दिन बैठ रहे हैं? कर लेंगे इंशाल्लाह, तारीख बता। पहले आप किस चीज का टाइम ले रहे हैं? आप किसके मोहताज हैं भाई? अबे हम मशवरा कर लेंगे भाई, हमारे मशवरा कर लेंगे। मैंने खुद कह दिया है कि मैं अपने आलिमों से तारीख खुद अपनी मर्जी से लूंगा। मुझे डेट बताइए, उसी दिन में कंफर्म कर लेता हूँ। आप एक काम करें, आपके वहाँ मुफ्ती मुजाहिद साहब है ना? जी हैं। हाँ, उनको मेरा नाम बता देना। और एक क्या मुफ्ती, क्या नाम है, 2-3 मुफ्ती वहाँ थे आपकी मस्जिद में, उनको मेरा नाम बताना कि अली असगर है, और ये क्या इससे मुनाजरा करेंगे बैठ के सामने? बिल्कुल, हम तैयार हैं। अगर वो ना करेंगे तो हम सबसे पहले आप साबित करना मुशाहिद भाई। यहाँ पे वो आ चुके थे, ये जो तुमने जिसने तुम्हारा नंबर दिया है ना, जिसने भी, इसने मुफ्ती तैयब ने दिया हो, जिसने भी तुम्हें नंबर दिया हो, इसके पास पहुंच गए थे मुनाजरा करने के लिए। अना भाई हम आ गए हैं, उसने तो खुद ही कह दिया मैं अपने आलिमों से पूछूंगा, ये है मुफ्ती में अब्दुल रहमान से पूछूंगा, डेट कंफर्म करूंगा, ये है वो है। तो कहें कि सही बात है भाई, मुनाजरा आमने सामने मशवरे से होता है। अरे कोई क्या मुश्किल है? आप 2 आदमी अपने बिठा लीजिए, 2 आदमी हमारे बिठा लीजिए, तो शरारत कराइए। चलो ठीक है, आप कौन सी बातें क्यों कर रहे हैं भाई? आप ना जिद पर हैं, जिद पड़े हुए हैं आप, जिद पर अड़े हैं। दीन समझने की चीज है, ठीक है? दीन हम समझे हैं, हमें आप दीन बिल्कुल, देखो ऐसा है, दीन मुझे मत समझाओ। कोई बेचारा, कोई भोला भाला सा हो, कोई ऐसा सीधा साधा सा हो ना, आप दीन उसे समझाओ। मुझे बिल्कुल दीन समझाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे, आप सीधे साधे नहीं है ना? मैं खुद अपने अकीदे में ऐसा इतना पढ़ा हुआ हूँ कि मैं आप सामने वालों को बता सकता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि अच्छाई और बुराई, मैं सिर्फ अच्छाई और बुराई पहचान सकता हूँ। मैं जितना पढ़ा हुआ नहीं हूँ, अगर ज्यादा पढ़ा हुआ होता तो आप मेरा एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाते, मैं आपको बोलने नहीं देता। एक काम करे ना, समझ गए? एक काम करे ना, आपकी कहीं मुफ्ती से बात करा देना। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और हम आप पे बैठे हुए हैं, सामने आप तो सुनने तैयार नहीं होता, बोले जा रहे हैं, सुनने तैयार नहीं है। मैं सुनूं क्या, ये बताइए आप? मैं सुनूं क्या? मैं तो आपकी सब सुन मैं बोल रहा हूँ, वो सुने आप जो आपके घर में लिखा हुआ है, वो तो मैंने भेज दिया, सुनते नहीं है। अपने घर अपने मुफ्ती को दिखाएं आपकी, भाई मैंने हवाला भेजा है, गलत है कि सही है? ठीक है, मैंने हवाला आपको भेजा है,
جو آپ کے لکھا ہے کہ بھائی آپ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید میلاد منائے، تو یہ جہاں تک مل کر ہے تینوں زمانے میں نہیں تھا، یعنی تینوں زمانہ والے اللہ کی نبی کی سنت چھوڑ دیے، اللہ کی سنت چھوڑ دیے، وہ بھی مسلمان وہاں بھی دیوبندی ہو گئے وہ لوگ سب جو جشن عید میلاد النبی منائے۔ ہاں ٹھیک ہے، بات کرو آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے۔